أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. چلیں جی، آج ہے ہمارے میم ساکن کے قاعدے. پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ نون ساکن کے قاعدے. اب اس کے ساتھ آئے ہیں میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن ہم بہت جگہ دیکھتے ہیں. تو جو میم ساکنہ ہے وہ کیا ہے؟ میم ساکنہ عربک میں کہا جاتا ہے، اور میم ساکن ہم عام لینگویج میں بھی بولتے ہیں، تو دونوں طرح سے صحیح ہے. تو میم ساکنہ کیا ہے؟ یہ میم خالی ہوتا ہے اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایسا میم. ہاں، کبھی کبھی اس پہ آپ کو جزم کا نشان نظر آئے گا. سکون عربک میں کہا جاتا ہے، جزم اردو میں ہم کہتے ہیں، شاید عربک میں بھی کہیں کہتے ہیں. تو جزم کا اور یا سکون کا نشان ایک آپ کو خالی نظر آئے گا، اور کہیں جگہ کہیں آپ کو سکون کے ساتھ. جو سکون بھی کبھی تو یہ پورا اس طرح راؤنڈ ہوتا ہے، اور کبھی آدھا راؤنڈ، جیسے ہمارے انڈو پاک کے قرآن میں نظر آتا ہے. تو یہ ایسا جو میم ہوتا ہے، فتحہ دمہ کسرہ نہیں ہوتا، یا تو خالی ہوتا ہے یا پھر سکون یا جزم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے میم ساکن. اور میم ساکن جو ہے وہ کہاں کہاں آتا ہے؟ وہ آتا ہے وسط، درمیان میں بھی آتا ہے ایک لفظ کے، اور آخر میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں اور آخر میں. جیسے یہ دیکھیں، یرحمکم بینہم، اس کے اوپر دیکھیں گے تو سکون ایسا نشان آتا ہے نا، ہمیں نظر آتا ہے. انڈو پاک قرآن کی کا اسٹائل ہے، جو میں نے یہ جو ورڈز یہاں پر آپ کو دکھائے ہیں. اور بینہم یہ خالی ہے. تو دونوں وے سے یہ آتا ہے، لیکن کیوں؟ کہ اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، جیسے ہم نے نون ساکن میں پڑھا تھا نا، کہ جب اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کو کلیئر پڑھ دیا جاتا ہے، وہ اظہار ہوتا ہے اس کا، ہے نا. پھر خالی ہم نے پڑھا تھا، خالی ہوتا ہے تو پھر دو قاعدے آتے ہیں سامنے، یا تو اخفا ہوتا ہے اور یا پھر ادغام ہوتا ہے. اور اقلاب میں تو وہ پھر بدل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی ہوگا. اس کے بھی قاعدے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے قاعدے ہیں. آواز بریک ہو رہی ہے. آئی تھنک میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں بارشیں بہت ہوئی ہیں، تو اس وقت تو چلیں آگے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ میم ساکنہ کے کون کون سے قاعدے ہیں. میم ساکن کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے ادغام، اور اس کو کہا جاتا ہے ادغام شفوی. پہلے میں آپ کو ان کا بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو شفوی کیوں کہا جاتا ہے. ادغام شفوی، ادغام ہم سب کو پتا ہے، اب تو ہم ایکسپرٹ ہو گئے نا کہ ادغام کا کیا مطلب ہے، ملانا. دوسرا قاعدہ ہے اس کا اخفاء شفوی، یعنی چھپانا، جیسے ہم نے نون ساکن میں کیا تھا. اور تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی، ان پہ لاگو کرتے تھے.
और अब मीम साकिना के कायदे में हम मीम साकिन पे ये सारे कायदे अब लगाएंगे, इस पे लागू करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर फीडबैक सिस्टर्स। ओके, तो शफवी पे पहले आ जाते हैं कि शफवी क्यों कहा जाता है। किसी को अंदाजा है क्यों कहा जाता है? हम्म, लिप्स, शफवी। शफवी, शफतान या शफतेन कहा जाता है होंठों को, क्योंकि दो होते हैं ना, तो दो को तेन या तान कहा जाता है जब भी दो होते हैं ना। कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जन्नतान, कौन सा, क्योंकि अरबिक के जो डायलेक्ट है वो भी डिफरेंट है ना। तो तैन या तान जब लगा हो तो उसका मतलब होता है ये दो चीजें हैं, डबल चीजें हैं। तो दो होंठों में से का क्या मतलब, कि इसका जो मीम है उसका जो मखरज है वो शफातान है, वो दो होंठ हैं। अब हम उसको करके देखते हैं। आप बोलिए अम, अम, दो होंठ मिले ना। तो इसी वजह से, क्यों, कि ये हरूफ शफवी है, इसलिए शफवी यानी होंठों का लफ्ज है, होंठों से अदा होता है, इसलिए इसको इदगाम शफवी कहा जाता है। ठीक है, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी और इजहार शफवी। तो इसलिए इसको इसको ऐसे कहा जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इदगाम शफवी जो है, जाहिर है हमने पढ़ा था कि कैसे पता चलता है यहाँ इदगाम करना है या इख्फा करना है, इजहार करना है। तो उसके लिए हमारे पास चंद लेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं। जैसे नून साकिन के बाद का लेटर हम देखते थे, तो हम ये डिटरमिन करते थे कि भाई यहाँ पर कौन सा कायदा अभी लगाना है। इसी तरह से मीम साकिन भी है। अब मीम साकिन में इदगाम शफवी कब होगा? जब मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगा, है ना। एक ही लेटर गया, मीम साकिन होगा। वो तो साकिन के रूल्स कर रहे हैं ना। मीम साकिन के बाद अगर मीम मुतहर्रिक आ जाता है, फतहा दम्मा कसरा, तो हम इदगाम शफवी करते हैं। ओके, देन नंबर टू कायदा इख्फा शफवी कब होता है, कब करते हैं, कब हम मीम को छुपाते हैं? जब उसके बाद बा आ जाए। ठीक है, जब उसके बाद बा आ जाता है तो हम मीम को छुपाते हैं, गुन्ना करते हैं। इदगाम शफवी में हम मिलाते हैं दो काउंट गुन्ना करके मीम में, और इख्फा शफवी में हम मीम को छुपाते हैं दो काउंट गुन्ना करके। फिर आ जाता है आगे हमारे हरूफ, माँ सिवाय मीम और बा के इजहार शफवी के हरूफ हैं। है ना, इजी, इजी बेबी है ना ये, बेबी रूल्स हैं। तो कोई इतनी लंबे चौड़े हमें चीजें नहीं देखनी, कोई हमने कोई वो नहीं पढ़ना याद करना। बहुत इजी है। इदगाम शफवी का लेटर मीम है, इख्फा शफवी का लेटर बा है, और इजहार शफवी का लेटर बाकी सारे मीम और बा के अलावा हरूफ है। अब हम देखते हैं कि जब नीचे दिए गए हरूफ में से कोई एक मीम साकिन के बाद आ जाए, तो इसके तीन असूल होंगे जो हमने पढ़े हैं अभी। ठीक है ना। मीम आ जाए तो क्या होगा? इदगाम शफवी। मीम को आपस में मिलाकर पढ़ना, इसको कहा जाता है
इदगाम शफवी। फिर मीम साकिन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो मीम को इजहार और इदगाम के दरमियान गुन्ना करते हुए पढ़ना। सेम वे, लेकिन इसमें जो है हम होंठों को जो है वो बिल्कुल गुन्ना करेंगे। देखेंगे तो हम किस तरह करेंगे, वो हम मिसालों में चेक करेंगे। बाकी सारे हरूफ जो हैं, जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा बाकी सारे हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो मीम को साफ पढ़ना चाहिए या पढ़ दिया जाता है। तो ये सारे तीन जो हैं कायदे हैं मीम साकिना के। मीम, बा, बाकी सारे हरूफ, ये बाकी सारे हरूफ हो जाएगा। ठीक है, आवाज क्लियर है? अगर नहीं आ रही होती तो अमूल, ये होता कि सब लोग लिखते हैं ना, तो मुझे लगता है सिर्फ आप ही को डिस्टरबेंस है। तो जरा जिनको ऐसे लग रहा है कि आवाज टूट रही है या कुछ है, तो आप अपने जो इंटरनेट का जो है ना वाईफाई, आप जरा उसके नजदीक चले जाएं, तो फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक एक को डिटेल में। नंबर वन कायदा कौन सा था? कट रही है ना आज जी, ये मसला है। मेरी दूसरी क्लास में भी ये मसला था। मैंने कहा यहाँ पे वेदर बहुत वो था रहा है, बारिशें वगैरह रही हैं। चलें जी, फर्स्ट जो है वो है इदगाम। इदगाम का जो कायदा है उसके बारे में, इदगाम शफी के बारे में आपको बताऊं, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है अल इदगाम मुतमासिलैन सगीर। आप कहेंगे इतना मुश्किल नाम? नहीं, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब जो है इदगाम मुतमासिलैन, हम उर्दू में एक लफ्ज यूज करते हैं मिसाल। हम्म, है ना, मिसाल यूज करते हैं ना हम, ये उसकी मिसाल है, ये उसके मिसल है। तो यहाँ पर क्योंकि दो मीम है, एक मीम दूसरे की मिसल है, जुड़वा है ना, जुड़वा है। तो क्या था, या नून जब आ जाता है कि शफातेन या आ, तो जब या नून आ गया तो मतलब दो। तो क्या दो मुतमासिलैन है, मीम और मीम बिल्कुल एक दूसरे के से मुतशाबहत रखते हैं ना, जुड़वा है। तो वो हो गया मुतमासिलैन। सगीर कहा जाता है जब इदगाम में पहला हर्फ हमेशा साकिन होता है ना। नून भी तो साकिन था ना, अब मीम भी साकिन है, और दूसरा हर्फ है जो उसके ऊपर फतहा दमा कसरा हो, तो वो जो इदगाम है उसको कहा जाता है सगीर। एक होता है इदगाम कबीर, वो दोनों इजहारी होते हैं, वो दोनों में नून भी इजहार वाला होगा, वाव भी इजहार वाला होगा, यानी वो इजहार होता है। वो जो है उसको साइड पे रखते हैं, इसीलिए उसको सगीर कहा जाता है, क्योंकि एक कबीर भी है। तो सगीर जो है उसका मतलब है कि जो हम कायदा कर रहे हैं उसमें जो मेन जिसका कायदा हो रहा है वो सगीर, यानी वो सुकून में है, और उसके बाद वाला हर्फ जो है वो फतहा दमा कसरा है। ठीक है, आगे समझ, इसलिए इसको सगीर कहा जाता है। इदगाम शफवी, ऐसा इदगाम जो एक जैसे दो जुड़वा हरूफ के दरमियान हो, और ये हर्फ साकिन हो। ठीक है, और ये हर्फ साकिन हो। ये लाभ जो है, ये इसको मैं मिस प्रिंट आया।
मीम साकिन हो, पहला मीम साकिन हो, दूसरा जो मीम आए उसके बाद वो मुतहरिक हो, या उस पे फतहा हो, या उस पे दम्मा हो, या उस पे कसरा हो। तो क्या होगा, मीम को मीम से इदगाम कर देंगे। अच्छा, इदगाम में मुतमासिलैन हमेशा दो लफ्जों के दरमियान होगा, जैसे कि नून साकिना का भी दो लफ्जों के दरमियान था ना, तो यहाँ भी दो लफ्जों के दरमियान किया जाएगा। मीम साकिन होगा, ये देखें मीम जो है वो साकिन होगा। दूसरा मीम तहरीक होगा, या उस पे कसरा वाली मीम आएगी इसके बाद, सुकून मीम साकिन के बाद, या फतहा वाली मीम आ जाएगी, या दम्मा वाली मीम आ जाएगी। तो उस मीम को हमने इस मीम में मुदगम कर देना है, और जो है इसके नतीजे में एक मीम पे क्या होगा, तशदीद आ जाएगी, क्योंकि दूसरा मीम भी मिल जाएगा ना, साकिन वाला मीम मिल जाएगा, और आगे फतह दमा कसरा वाला मीम मिल जाएगा, दो मीम हो जाएंगे, तो उन पे तशदीद आ जाएगी। कैसे, देखें मीम एक कम, ये मीम खाली है ना, कम, अगर एक लफ्ज है कम, मीम खाली है। अच्छा, आगे मुतहरिक मीम आ गया, ये मीम साकिन, ये मीम पे कसरा आया, तो क्या होगा, क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इदगाम कर देंगे, और मीम पे तशदीद आ जाएगी। कम मिन, ठीक है। अब मुसहफ में इसकी क्या अलामत होती है, कुरान मजीद में पहले मीम पर जज्म सुकून होगा और अगला मीम मुशद्दद होगा, यानी इस पे तशदीद होगी और मुतहरिक होगा। ये जो है, ये है पाकिस्तानी इंडो पाक मुसहफ, क्योंकि उसमें हमेशा से ही सुकून, हर एक पे आप सुकून देखोगे। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इंडो पाक में मुसहफ में हमने जो तजवीद के कायदे हैं वो इतने क्लियर नहीं पढ़े जाते, जबकि अरबिक मुसहफ बना ही उस तरीके पे है। कुरान मजीद में पहले मीम खाली होगा, ये अरबिक तहरिक होगा, ऐसे। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु, ठीक है। देखिए मीम खाली है, उसके बाद दूसरा मीम है, उस पे तशदीद है, और उस पे ऊपर फतहा है। ये दोनों मुख्तलिफ हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, जो इंडो पाक मुसहफ पढ़ते हैं वो सिर्फ मीम को याद रखें, मीम के बाद मीम आ गई, और यहाँ पर एक चीज ये होती है कि उन्होंने दूसरे मीम पे तशदीद दी होती है, तो उन हमें पता होता है कि ये हमने मिलाना है, कुम मग, इसलिए कि हमारी बहुत से जो कौम है हमारी इंडो पाक में, बांग्लादेश में, हम लोग तजवीद का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने आसानी हो जाती है, बगैर हम जाने कि ये इदगाम मुतमासिलैन सगीर है, वो ऐसे पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मिसालें देखते हैं इसकी। कम मिन कम मिन फिअतिन अमन अस्ससा, सी, ये देखिए खाली है ना, फिर है खलक़ लकुम मा, खलक़ लकुम मा, ये खाली है, दोनों मीम टुगेदर हो गए, पहला खाली है, दूसरा जो है मुतहरिक है, तो ये क्या हुआ, इदगाम, मीम और मीम में हमेशा इदगाम ही होगा। अब आ जाता है हमारा दूसरा फायदा, अल इख्फा शफवी, मतलब छुपाना। हम्म, इख्फा क्या है हम सबको पता है अभी,
किसी हर्फ को इदगाम और इजहार के दरमियान गुन्ना करके पढ़ने को इख्फा करना कहते हैं। अब मीम का हर्फ कौन सा इख्फा का? बा। तो जब भी मीम साकिन होता है और उसके बाद बा आ जाता है तो मीम जो है वो बा के साथ में पढ़ा जाता है, 2 काउंट गुन्ना के साथ। ठीक है। और 2 हरकत गुन्ना करके मीम को बा में छुपा कर पढ़ा जाता है। कैसे? अच्छा, आगे देखते हैं। इख्फा शफवी हमेशा 2 लफ्जों के दरमियान होता है। अब मिसालें चेक कर लेते हैं हम लोग। जब मीम खाली हो, देखें मीम खाली होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा? इदगाम का मीम कैसा था? खाली था, है ना? तो अब इख्फा शफवी का जो बा है वो भी आएगा। जब इख्फा शफवी होगा तब भी मीम खाली होगा। ठीक है, मीम खाली होगा और उसके बाद हर्फ बा आ जाएगा। फहकुम बैनहुम वकल्बुहुम बासितुन यौमहुम बारिजून तरमीहिम बिहिजारतिन। तो इस तरह से हम इख्फा करते हैं मीम साकिना। थर्ड कायदा पढ़ते हैं इजहार शफवी, जाहिर करना। और इसके कौन से हरूफ थे? इजहार शफवी के कौन कौन से हरूफ थे? मीम और बा के अलावा बाकी सारे जितने भी हरूफ बाकी रह जाते हैं वो सारे मीम साकिना के हरूफ हैं। तो हेंस क्या पता चला कि कुरान मजीद में ज्यादातर जो हम है ना वो इजहार ही पढ़ते हैं। इसका इख्फा और इदगाम जो है वो बनिस्बत इजहार के कम आते हैं। ठीक है। तो मीम साकिना देखते, बैनहुम, हमको उसके ऊपर क्या नजर आएगा? सुकून। ठीक है। जस्ट लाइक नून साकिना, नून साकिना में भी जब इजहार की तरह नून पे सुकून नहीं था, सिर्फ जब वो इजहार था। तो यहां भी हमें ये जो है इंडिकेशन दिया जाता है कि जब भी मीम पे सुकून होगा तो वो क्या पढ़ा जाएगा? इजहार पढ़ दें। ठीक है। अब कैसे करना है इजहार? इजहार का क्या मतलब है? हर्फ को इसके मखरज से मीम की गुन्ना सिफ्त को लंबा किए बगैर अदा करना। और इजहार तो होगा जिस तरह हमने नून का किया था ना, मन, मिन। इसी तरह से हम यही करेंगे। अम, लम, ऐसे नहीं लम, गुन्ना लंबा नहीं होगा। ठीक है। मीम को गुन्ना लंबा किए बगैर इसके मखरज से अदा करने को मीम साकिन का इजहार शफवी कहा जाता है। मीम साकिन है उस, तो क्या होगा? मीम को गुन्ना किए बगैर साफ पढ़ दिया जाएगा। इजहार शफवी 1 और 2 लफ्जों के दरमियान होता है। एक एक लफ्ज में भी आ सकता है और 2 लफ्जों में भी आ सकता है। चेक करते हैं मिसालें। एक लफ्ज में मिसाल देखते हैं। इल्ला रम, देखिए मीम के ऊपर आपको सुकून नजर आ रहा है। इल्ला रमजा, जा आया है। ठीक है, जा आ गया है। मीम और बा के अलावा बाकी सारे हरूफ में से जा आ गया है। फिर है व अमतरना, व अमतरना, अम, अम। और देखिए मीम के ऊपर सुकून है।
अम्सालुकुम अमनन फयमकुतु उम्युन। अब इसमें किसी में भी मैंने ये नहीं कहा इल्ला रमजा व अमतरना व अमददना यमहदूना। नो, बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करना, उतना ही जितना कि मीम की अपनी सिफ्त है उसको हम नहीं निकाल सकते। रमजा अमतरना अमददनाहुम यम यम हदूना अम अम सालुकुम अम अम अमनन। अब हम देख मिसालें दो लफ्जों के दरमियान। देखें, दो लफ्ज की मिसालें हैं। मसत हुम, उसके बाद की मीम साकिन है, उसके ऊपर सब में आपको देखे सुकून नजर आ रहा है ना। हम्म? जबकि पिछले जो हमने पढ़े थी मिसालें, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी में मीम जो था वो खाली था। मस्सतहुम ताइफुम मस्सतहुम ताइफुन मस्सतहुम नफहतुन वत्तबअतहुम हुम हुम वहुम फरिहून वहुम फरिहून वहुम ज़ालिमून वहुम सागिरून वहुम वहुम मस्सतहुम मस्सहुम। किसी भी मीम को मैंने खींचा नहीं। गेम टाइम आ गया हमारा। आप मुझे बताइएगा, टाइप करना है बाप ने, मैं आपको वर्ड्स दिखाऊंगी, आपने टाइप करना है कि कौन सा, पहले मुझे चैट खोलने दें, कि ये कौन सा कायदा है मीम साकिना का। रेडी, शुरू करूं? के हाफ अ मिनट में भी चलें। ओके। हुम फीहा, मैं उसको पढ़ूंगी नहीं असूल के जैसे, आपने बस मुझे बताना है। इजहार। यस। हाँ, लेकिन इसके ऊपर मुझे सुकून देना चाहिए था। माशाल्लाह, सुकून के अलावा भी आप पहचान गए। ओके, दिस वन, ये बताएं। इदगाम। ओके, इदगाम। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना, वेरी गुड। इदगाम, यस। और अगर किसी को नाम पता है, बड़ा वाला नाम, इदगाम में मुतमासिलैन सगीर, हाँ यस, और इदगाम में शफवी भी, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, ये क्या है? यस, आप लोग, यस, बिल्कुल इदगाम जो पहला था, मुतमासिलैन सगीर। अब ये वाला ग्रीन वाला देखें, क्या है ये? इख्फा, मीम साकिन है, उसके बाद बा आया है ना, तो क्या हो गया ये इख्फा शफवी होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा, यहाँ पर आपको मैंने एक्चुअली गोल्डन नोट लिखना था, पता नहीं लिखा है मैंने कि नहीं, तो एक गोल्डन नोट याद रखें। ज्यादातर जब मैं सुनती हूँ रेसिटेशन, तो ये होता है, सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, कोई नहीं पढ़ता, बस सब पढ़ देंगे रब्बाहुम बिहिम। वेरी, मैं कहूंगी कि कोई 40% जो लोग होंगे वो पढ़ते हैं, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर होता है। ओके, ठीक है नौरी, आई विल जस्ट से द वर्ड्स।
ओके, रब्बाहुम बिहिम, अब बताएं, रब्बाहुम बिहिम। इख्फा शफवी, मीम साकिन एंड आफ्टर दैट बा। ओके, नेक्स्ट वाला आप लिखें जी, फलम यजिदू, फलम यजिदू, इजहार, फलम यजिदू, मीम है उसके बाद या आया है। यालम बी अन्ना, यालम बी अन्ना। अब ब्लू वाला बताएं मुझे, यालम बी अन्ना, इख्फा, यस, के मीम के बाद, मीम साकिन के बाद बा आया है। ओके, लास्ट वन इज लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन। अब मुझे वैसे पढ़ना पड़ रहा है, यूजुअली मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि पढ़ने से पता चल जाता है। लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन, इदगाम शफी, बारिकल्लाहु फीकुन्ना, माशाल्लाह, वेरी गुड, यू ऑल आर स्टार्स, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब तो ये था हमारा लेसन जो कि खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो मैं, आगे जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं सूरह यासीन, अब आप उसमें से प्रैक्टिस करेंगी। तो आज से हम इंशाल्लाह ये जो कायदे हैं किसमें करेंगे, सूरह यासीन में इंशाल्लाह। तो ये जो है सूरह यासीन, लेट मी टेक आउट एंड शेयर विद यू, उसमें हम पहले, और फिर आपने जो है वो बाकी का नेक्स्ट जो पेज है वो आपने मार्क करके अपने ग्रुप में भेजना है, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, सूरह यासीन लोड हो गया। ओके, चलें, जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप सूरह यासीन वैसे खोल लें। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, ये सीन जो है इसको 6 काउंट लंबा किया जाएगा। अभी मैं इसके रूल में नहीं जाऊंगी, ना ही ये हमारा आज का रूल है। अब हम सिर्फ देखेंगे नून, सॉरी, मीम साकिना के कायदे, ठीक है, उसी को ढूंढेंगे हम। ओके, लेट मी गेट माय पेन, ताकि आप लोगों को पता चले के बारे में बात कर रही हूँ। ओके जी, ये बताएं मुझे, ये वाला जो मीम है, ये वाला, बस आप जल्दी जल्दी टाइप करते जाए, मैं लगाऊं तो आप मुझे बता दें कि जो है वो इजहार, गुड, ठीक है। अब उससे आगे भी मीम साकिन है ना, हम्म, उससे आगे भी मीम साकिन है, ये, वेरी गुड, माशाल्लाह जी। इसमें क्या है, मीम साकिन है, आफ्टर दैट गाइन, तो इजहार होगा। अच्छा, ये वाला बताएं, अब ये देखें और फिर अगला हर्फ देखें, फा है, इजहार। मीम के ऊपर सुकून से ही आपको पता, देखेंगे पता चल रहा है ना आपको। हाँ, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अनाकिहिम औलालन, इजहार, ये भी मैंने कहा था ना आपको इजहार बहुत मिलेगा। अच्छा, हाँ ये भी है ना, ये वाला भी है, ये बताएं, फाहुम ला, ये भी क्या है, इजहार। अच्छा चलें, ये एक हमें मिला है, ये क्या है, फाहुम मुकमहून, ये वाला, फाहुम मुकमहून, इदगाम शफवी, इदगाम मुतमासिलैन सगीर। सगीर क्यों है, क्योंकि मीम साकिन है
اور اس کے بعد کا جو میم ہے وہ متحرک ہے. ایدیہم سدوں. بتائیے کیا؟ ایدیہم اظہار. یس اظہار ہے یہ. اوکے لیٹ می کلیئر دس. اوکے اوکے یہ والا بتائیں. خلفہم سدن، یہ بھی بتائیں. سکون ہے میم کے اوپر، تو کیا ہے یہ؟ اظہار. ویری گڈ ماشاء اللہ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ پڑھوں گی یا میں پڑھوں گی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اڑنا نہیں کروں گی، لمبا نہیں کھینچتا اس کو، ہے نا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا، بس آرام سے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اوکے یہ بتائیں. میم ساکن حمزہ آ گیا اس کے بعد. اظہار. ویری گڈ. میم ساکن پھر آ گیا حمزہ، کیا ہوگا؟ اظہار. میم ساکن آفٹر دیٹ لام. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار. اوکے اوکے ہاں یہ بتائیں. اظہار دیکھیں کتنا اظہار آیا ہے. پریکٹیکلی دو لیٹرز کے علاوہ باقی سب میں کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اظہار زیادہ ہوتا ہے نا. تو دھیان رکھنا ہے، اسی لیے جب اخفا کا قاعدہ آتا ہے بیچ میں تو ہم اس کو نا اگنور کر جاتے ہیں. اگنور نہیں کرنا پلیز. اس کو آپ نے پڑھنا ہے پورا اخفا کے قاعدے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ نیکسٹ جو پیج ہے اس میں یہ جو پورا پیج ہے نا، اس میں پھر آپ نے جو ہے جو میم ساکنہ کے قاعدوں کو جیسے میں نے انڈر لائن کیا ہے، آپ اس کو انڈر لائن کریں اور پھر جو شفوی آئی ایس جیسے یہاں پر لکھ دیا، پھر یہ اظہار آئی زیڈ لکھ دیا، ہے نا. جس طرح آپ بھیجتے ہیں ہمیشہ سے ماشاءاللہ، تو اس طرح سے آپ نے بھیج دینا. میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ اس میں کوئی اگر تو مجھے مل جائے آپ سے بات کرتے کرتے. ہاں یہ دیکھیں، ذکر ذکر تم بل. ذکر ذکر تم بل، ہے نا. تو یہ جو ہے، یہ جو میم کے بعد با آ گیا نا، اس کو آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا. جب بھی آپ نے جو ہے قرآن پڑھنا ہے تو یہ 2 کاؤنٹ غنہ ہوگا. یہ اخفا ہے میم ساکنہ کا. بل 2 کاؤنٹ غنہ. ٹھیک ہے. آپ کوئی کوشچن آپ نہیں سمجھ آئی تو پلیز آپ لوگ پوچھ لیں، پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں ہے؟ چلے الحمدللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہے نا؟ گولڈن رول یہی ہے، اخفا کو یاد رکھنا. آپ نے اخفا کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ ہم اتنی دفعہ اظہار کرتے ہیں، اتنی دفعہ، بلکہ
اور ادغام تو ہم آٹومیٹکلی کر لیتے ہیں کیونکہ دوسری میم پہ تشدید ہوتی ہے، لیتے ہیں بات، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو ریمائنڈر ہے وہ ایسے ہو کہ بھائی آ, آپ نے جو ہے میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو 2 کاؤنٹ غنہ کرنا ہے۔ عائشہ، عربی سیکھنے کے لیے بہت سے کورسز ہیں آن لائن، اس کے بھی ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ہیں۔ اگر کسی کوئی سسٹر کر رہی ہیں تو پلیز گائیڈ کر دیں عائشہ کو یہاں پہ۔ بہت سے کورسز ہیں، ہر کوئی کرا رہا ہے۔ کون سی استاد عامر، ان کا بہت اچھا کورس ہے، بہت منظم طریقے سے ان کا واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے۔ جی یوٹیوب پہ ایکچولی آپ خود نہیں کر پاتے ہو، کوئی آپ کو کورس جوائن کرنا ہوتا ہے، اور جب بھی جو ہے وہ آپ صحیح، اور دیکھیں انہوں نے شاید اپنا نمبر دیا ہو اپنے کسی ویڈیو میں، تو ان کے جو ہے واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں، اور بہترین کراتے ہیں ان کے، وہ بہت اسٹرکٹ بھی ہیں اس معاملے میں۔ بہت سے ایسے کورسز ہیں جو آن لائن ہیں، اگر کوئی سسٹر کر رہی ہیں تو پلیز آپ یہاں گائیڈ کر دیں کہ آپ کہاں سے کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته